Never did I think that I will talk about this topic, but here we are today. मैं bad bitch बनी हूँ. I was like, you know what? I'm gonna leave my past behind. I'm not gonna talk about the most embarrassing moments of my life and the things that gave me lifelong insecurities. But a lot of you said कि oh you're so baddie, give us tips and also let me just tell you मैं baddie नहीं हूँ. मतलब मैं हूँ अभी पर मैं बचपन से नहीं रही हूँ. मेरा बहुत कटा है. And today I guess I'm going to reveal all my lore to show you guys कि एक बैडी को अपनी लाइफ में बहुत ही बुरे हादसों से निकलना पड़ता है टू रीच अ सर्टन स्टेज. सो द वर्जन ऑफ मी दैट यू सी टुडे आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट व्हेन आई वॉज अ टीनेजर एंड a young adult. मतलब I'm still a young adult. I don't think so I'm that old. But you know what? लेट्स गेट इनटू इट. तो ये बात स्टार्ट होती है 2012 से. अभी मेरे डैड की पोस्टिंग बरेली से जस्ट दिल्ली आई होती है एंड आई वॉज वेरी लाइक स्कैर्ड टू लीव बरेली बिकॉज इट वॉज अ स्मॉल सिटी और मतलब मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल उधर था. आई हैड ग्रेट फ्रेंड्स एंड दिल्ली मतलब बहुत ही इंटिमिडेटिंग सिटी था. इट वॉज अ बिग सिटी. आई वॉज लाइक यहाँ पे तो बहुत मीन गर्ल्स होंगे. और जिसमें 6th क्लास में आई थी, ठीक है. एंड काफ़ी सारे लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे एंड सिंस आई वॉज अ न्यू स्टूडेंट नो बडी रियली स्पोक टू मी, नो बडी रियली गेव मी अटेंशन. मेरे को एज एन आउटसाइडर ट्रीट करा जाता था एंड मैं भी बहुत शाय और इंट्रोवर्ट थी तो मैं भी ज़्यादा किसी से बात करती नहीं थी. देन इवेंचुअली देर वॉज दिस वन गर्ल हु वॉज रियली नाइस टू मी. आई मेड फ्रेंड्स विद हर. फिर धीरे धीरे करके मेरे और फ्रेंड्स बनने लगे. फिर यू नो नेक्स्ट ईयर तक हम लोग 7th में आ गए थे एंड आई वॉज लाइक यहाँ तो बहुत ज़्यादा क्लास पॉलिटिक्स हो रही है. ऑल द पॉपुलर एंड कूल एंड रिच किड्स वुड सिट टुगेदर एंड द रेस्ट ऑफ अस वुड जस्ट लाइक बी you know like made to feel like we're not important or whatever. And like I was just never really given importance in that one school of mine which I absolutely hate till date. Whatever, so that happened and I was like, you know what, fuck it, mere jo bhi friend circle hai I will be happy with them. And it was me and 3 other girls and we were a group of 4 girls. We were very happy. आई एम नॉट इन टच विद आइदर ऑफ देम राइट नाउ. आई मेरे को एक लड़की का तो नाम भी नहीं याद है बिकॉज ये इतनी पुरानी बात हो गई. और तब ना किसी को फेसबुक पे आने की परमिशन नहीं थी, तब इंस्टाग्राम नहीं था, तब हमारे पास हमारा खुद का फ़ोन नहीं था, तब हम लोग लैंडलाइन से एक दूसरे से बात करते थे. वाई आई फील सो ओल्ड बट दिस इज़ लाइक 2013 ओनली. And yeah, basically that happened and I was the only person who had Facebook and everyone thought कि अरे ये तो bad influence है, इसके पास Facebook है and all of that. So I think this is why सबके parents ने बोला कि just cut her out or whatever. So yeah, basically I am not in touch with anyone else. But you know what, bitches? Facebook made my career today. So yes, I am the bad influence. So basically मेरी क्लास में एक लड़का था, ठीक है. I'm not gonna tell you his name. Like I'm sure, I don't think so he's even watching my videos. I'm sure I have also given him a lot of trauma. But whatever, there was this guy, let's call him X, ठीक है. So now X was a really cute guy and every girl had a crush on him and everyone was like, oh my god, oh my god. I mean, he was kind of cute for 7th grade. I don't know how he looks now. We haven't been in touch in the last what, like 10 years, or not even 10, I think more than 10 years or so. The last time I kind of like creeped up to him was in 2017, I guess. So yeah, whatever, we haven't been in touch for a really long time and I'm very happy with the way that things ended. But I wasn't really happy how it all started. So basically everyone had a crush on him and naturally अगर मेरे को कोई भी good looking attractive लड़का दिखता है I'm like and I've never had a crush before, okay. मतलब मेरे को शाहरुख खान क्यूट लगता था, मेरे को रणबीर कपूर क्यूट लगता था, बट मेरे को ऐसा किसी एक्चुअल लड़के पे कभी क्रश नहीं था. एंड दिस वॉज माई फर्स्ट क्रश एवर. And apparently every girl in my class, in fact every girl in my school had a crush on this guy. You know that one football player जो बहुत ऐसे क्यूट सा लगता है. तो मैंने उसको फुल फेसबुक पे स्टॉक किया था एंड आई वाज लाइक ओके सो क्यूट ही इज व्हाटएव्स. एंड तो बेसिकली ये सब होता था एंड ही नेवर रियली स्पोक टू मी. बट वी जस्ट हैड दिस वन इंसिडेंट जब वो अपने दोस्तों को खींच खींच के यू नो वो जो किट नहीं होती कंपस वाली किट एंड ऑल ऑफ दैट, वो अपने दोस्तों को ऐसे खींच खींच के क्लास में किट मार रहा था और उसने किसी के ऊपर मारी और मेरे फेस पे लग गई. एंड आई वाज लाइक, तो तब तो मैं ऑफकोर्स बहुत ही ऐसे टीचर्स पेट हुआ करती थी. सो आई वेंट टू माई क्लास टीचर एंड आई कंप्लेंड अबाउट हिम एंड एवर सिंस आई थिंक ही हेटेड मी मोर. मतलब आई डोंट नो मेरे अंदर क्यों ऐसे एनिमीज टू लवर्स करने की आशिकी होती थी. बट स्टिल वट एवर, आई थिंक व्हेन दैट हैपेंड आई वाज लाइक यू नो वट, फक यू, आई एम नेवर एवर गोइंग टू लाइक यू एवर अगैन. बट ऑफकोर्स लिटिल डिड आई नो no, this is not about him. Anyway, so basically that happened and एक सेकेंड यार मैं अपनी ब्राउज कर रही हूँ, मैं थोड़ा ना डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ. I'm using Anastasia
and I'm using pack brushes. Basically all of this happened and I was like ठीक है fine. फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर में आ गए एंड नेक्स्ट ईयर में अपेरेंटली जो हमारे क्लास टीचर थे उनकी बेटी भी हमारे क्लास में पढ़ती थी एंड देयर वर सम रूमर्स अबाउट उनकी बेटी हैविंग अ थिंग विद दिस गाय ओके एक्स. सो नाउ ऑफ कोर्स लाइक हिम बीइंग अ प्रोटेक्टिव डैड आई थिंक ही वांटेड टू कीप हिज डॉटर अवे और व्हाटएवर. आई विल टेल यू. तो हमारे एक क्लास टीचर थे उनकी बेटी भी हमारी क्लास में पढ़ती थी ठीक है. तो तब उन्होंने बोला कि एक लड़का एक लड़की साथ में बैठेंगे ना. आई वाज लाइक फन ओके. सो वी ऑल सैट लाइक दैट, एक लड़का एक लड़की व्हाटएवर. तो उनकी जो बेटी थी वो एक्स के साथ बैठ गई एंड दिस वाज गोइंग ऑन फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड आई गेस दे वर डेटिंग और दे लाइक्ड ईच अदर और आई डोंट नो व्हाटएवर द सीन वाज. बट आवर क्लास टीचर गॉट टू नो एंड ऑफ कोर्स हिम बीइंग लाइक अ प्रोटेक्टिव फादर ही डिड नॉट लाइक इट एंड ही वांटेड टू टेक दिस गाय एक्स अवे फ्रॉम हिज डॉटर. तो वो लोग मेरे 3-4 सीट आगे बैठे थे. सो आई थिंक इन हिज हेड वॉट ही थॉट कि मैं इस लड़के को क्लास की अगलीस्ट लड़की के साथ बिठाता हूँ. सो ही विल ऑल्सो नॉट हैव एनी इंटरेस्ट एंड शी विल ऑल्सो नॉट गिव अ फक. तो ही थॉट कि अगर मैं इस लड़के को क्लास की अगलीस्ट लड़के के साथ क्लास की अगलीस्ट लड़की के साथ बिठाऊंगा तो ऑफकोर्स लाइक मेरी बेटी के साथ ही नहीं रहेगा. सो यू नो वॉट ही डिड, ही पुट ए आउट ऑफ हिज प्लेस एंड मेड हिम सिट नेक्स्ट टू मी. He thought that I'm probably the most ugliest person in the class जिसमें कोई interest दिखाएगा नहीं and of course I think that is what made him do that. But whatever I'll come to the main point. तो तब ना मैं ऐसे थोड़ी बैड बिच बनने की कोशिश करती थी. I was like listen, ये एक बीच में लाइन है, तुम्हारा एरिया वो है, मेरा एरिया वो है, हमारी एल्बोज भी नहीं टच होनी चाहिए. मतलब डीप डाउन मेरे को उस पर बहुत सॉलिड वाला क्रश था बट I was like मैं क्यों दिखाऊँ, मेरे को क्रश है इसके ऊपर. और बीच बीच में ना मेरी ऐसे एल्बोज टच होती थी ना. I was like पर मैं फेस पर नहीं दिखाती. आई वाज लाइक एओ प्लीज़. मतलब आई वाज लाइक वेरी ऐसा कि मतलब मैं क्यों, मतलब मैं लाइक आई वांटेड टू बी नो आई नो सब लड़कियों को तुम पे क्रश है, नहीं मुझे तुम पे क्रश मैं मतलब मैं आई एम वेरी डिफरेंट, आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स, मुझे तुम पे क्रश नहीं है. एओ मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं थोड़ी पिक मी हुआ करती थी. एंड देन ऑल द गर्ल्स इन माई क्लास वुड बी लाइक ओ माई गॉड यू आर सिटिंग विद हिम, लाइक एवरीवन हैड सच अ ह्यूज क्रश ऑन हिम. सो व्हेन आई गॉट टू सिट विद हिम एवरीवन वाज लाइक ओ माय गॉड ओ माय गॉड. आई वाज लाइक गाइस व्हाटएवर चिल, इट्स नॉट अ बिग डील. मैं मतलब ऐसे बहुत नॉनशलेंट एक्ट करती थी बट अंदर ही अंदर मेरे अंदर जो कैडबरी बर्स्ट हो रही थी ना, क्या बताऊँ मैं. वो कुछ दिन के लिए हुआ. आई थिंक ही सैट विद मी फॉर हार्डली लाइक अ मंथ और समथिंग एंड देन आई थिंक हम लोग नेक्स्ट ग्रेड में चले गए. आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट रियली रिमेंबर व्हाट हैपेंड बट ये सब हुआ. फिर उसके बाद आई थिंक मेरे डैड की पोस्टिंग आ गई एंड नहीं मतलब उनकी पोस्टिंग नहीं आई. वी हैड टू शिफ्ट टू द कैंट एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट लेट्स गो फॉर अ बेटर स्कूल. मेरा स्कूल में मन नहीं लग रहा है एनीवे. और मेरा होता था किसी भी स्कूल में ना मैं 2 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाती थी बिकॉज हमारी इतनी पोस्टिंग्स आती रहती थी. आई वाज लाइक आई वुड रैदर शिफ्ट. तो इवन तो हम लोग दिल्ली में थे, हम साउथ दिल्ली से वेस्ट दिल्ली मूव हो गए थे आर्मी कैंट की तरफ एंड आई वाज लाइक आई गो फॉर अ एयरफोर्स या आर्मी वाला स्कूल बिकॉज आई बॉन्ड विद द पीपल बेटर देयर. यहाँ पर मैं सिविलियंस के साथ कैसे बॉन्ड करूँ, अब मैं खुद सिविलियन हो गई हूँ गाइज. सो anyway that happened and then I moved to a different school. फिर when I moved to a different school वहाँ पे न्यू ईयर्स ईव हो रहा था और तब मेरे पास ब्लैकबेरी का फ़ोन था और मैं अभी भी अपने पुराने स्कूल के व्हाट्सएप में टच में थी. एंड हम लोग न्यू ईयर्स ईव के टाइम पे घर आ गए एंड आई ओपन माई फ़ोन एंड माई फ़ोन गॉट हैंग. ठीक है, क्योंकि ब्लैकबेरी था और इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, तब व्हाट्सएप न्यूली लॉन्च था एंड आई वाज लाइक पता नहीं यार क्या हो रहा है. एंड देन सडनली 12:02 AM पे मुझे एक्स का मैसेज आता है सेइंग हैप्पी न्यू ईयर. न्यू की स्पेलिंग गलत, हैप्पी की स्पेलिंग गलत, ईयर की स्पेलिंग गलत, बट आई वाज लाइक ही वॉन्ट्स मी बैड. सो अब मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है. मैं आई वाज लिटरली जंपिंग इन माई रूम. आई वाज लाइक इसका रिप्लाई आ गया एंड आई वाज लिटरली जंपिंग इन माई रूम. And guess what? I couldn't reply to him because मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है. I can't see, I can't scroll. And I'm like literally crying in my room. I'm like मैं इसको हैप्पी न्यू ईयर कैसे विश करूँ. और इस बात को ना 20 मिनट हो गए and he can see that I'm online. He can see कि मेरा ऑनलाइन दिखा रहा है पर मैं इसको हैप्पी न्यू ईयर रिप्लाई नहीं कर रही हूँ. He's like oh if you have so much attitude then bye. I was like I don't have attitude, okay? I don't, just God wants me to be a bad bitch. तो whatever, basically that happened and मैंने फिर अपने आप को ओवर एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं यार ऐसा नहीं यार, मेरा फ़ोन हैंग हो गया था यार, पता नहीं मैंने क्यों करा ये सब, but I did that. फिर उसके बाद जब ये सब हुआ देन वी स्टार्ट टॉकिंग ओवर व्हाट्सएप. अब हमारे स्कूल्स डिफरेंट थे एंड आई थिंक मे बी आई डोंट थिंक सो ही वॉज फ्लर्टिंग विद मी, मे बी ही वॉज जस्ट बीइंग फ्रेंडली और वट एवर. पर मैं तो फुल सॉलिड साइंस में ले लिया था. फिर आई थिंक उस टाइम पे ना मैं ये जवानी है दीवानी देखी है वापस से देखी. आई डोंट रिमेंबर वट हैपेंड बट आई वॉज अ ह्यूज ये जवानी है दीवानी फ़ैन. ओके, लाइक ह्यूज फ़ैन,
तो अभी ये जवानी है दीवानी मैंने वापस से देख ली एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, उसमें नैना का एक डायलॉग होता है ना कि बनी तुम समझते क्यों नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से और तुम्हें नहीं होगा फिर से। तो मैंने उसको रैंडमली ऐसा डायलॉग लिख दिया बिकॉज आई वाज लाइक अब तो ये मेरे को स्कूल में नहीं दिखेगा, अब तो मैं इसके सामने फुल फ्री बन सकती हूँ। सो आई सेंट हिम दिस एंड आई स्वेयर टू गॉड दैट्स द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग आई हैव डन। आई एम so embarrassed of myself. Anyway, I did that and I think he left me on scene or whatever. Yeah, wait, he blocked me. Yeah, he blocked me. And we never really spoke after that. ठीक है, फिर 9th हो गया, फिर मेरी 9th क्लास चालू हो गई और आई स्टार्ट टॉकिंग टू अनदर गर्ल, ठीक है, लेट्स कॉल हर वाई, फ्रॉम माई पुराना स्कूल ओनली, एक्स के स्कूल वाला। एंड अपेरेंटली शी एंड एक्स वर डेटिंग और दे हैड अ थिंग। तो मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करी थी टू गेट आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, लाइक हर एंड एक्स। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा क्रेजी थी, ठीक है, प्लीज़ लाइक लेट्स नॉट, I'm different now. तो बेसिकली एंड देन अपेरेंटली दे वर डेटिंग, मेरे को किसी और इंसान ने भी बताया एंड मतलब बेसिकली बहुत बीटी चल रही थी तब मेरी लाइफ में एंड आई एम नॉट एट ऑल प्राउड ऑफ द पर्सन आई वॉज, बट it gave me content, it gave me character development, it made me funny. So the trauma always lands up in a good place. It doesn't, sorry. That all happened and I got to know they're dating and I was just really pissed and I started lashing out at that guy. I think I texted him from a different account or something. I don't even remember, but I was really crazy. फिर उसके बाद क्या हुआ? Now the worst part. Wait, lip liner लगा लूँ. So now, one time in, I think 9th, I was sort of, like I was still kind of into this guy and I had a huge crush on him, but I couldn't do anything about it. तो मैं एक तरफा प्यार करके रोती रहती थी. I was like, क्या हो रहा है मेरे साथ? हो shit. But I couldn't talk to him and whatever. फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, वो अपनी मम्मी के व्हाट्सएप से आती थी और हम लोग का बाकी का खुद का व्हाट्सएप था। तो एक दिन हम लोग रात के 2-2 बजे तक बातें कर रहे थे, हम लोग गालियाँ वालियाँ दे रहे थे एंड लाइक उस टाइम पे हम लोग ना BCMC बोलने लगे थे। तो हम लोग ऐसे गालियाँ वालियाँ दे रहे थे एक दूसरे को, हम लोग ऐसे अपने क्रशेस के बारे में बात कर रहे थे और उस हमें पता नहीं था लेकिन उस लड़की के पापा हमारा व्हाट्सएप चैट ग्रुप का पढ़ रहे थे। सर हाउ क्रीपी, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ क्रीपी, वी आर ऑल अ बंच ऑफ 14-year-olds. सो ही डिड दैट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही कॉल्ड माई पेरेंट्स, ही कॉल्ड मेरी बेस्ट फ्रेंड के पेरेंट्स, ही कॉल्ड मेरे 2 अदर फ्रेंड्स के पेरेंट्स एंड बी लाइक आपके बच्चे रात भर व्हाट्सएप पे क्या क्या गालियाँ देते रहते हैं, इन लोग को तो क्रशेज हो रहे हैं, इन लोग के तो, आई हेट इंडियन पेरेंट्स. सो ही डिड दैट और उसकी वजह से मेरी मम्मा की तो सटक गई. मम्मा वॉज लाइक मैं अपनी बेटी को चुड़ैल बोल सकती हूँ, कोई और मेरी बेटी को कैसे चुड़ैल बोल सकता है? एंड देन शी वॉज लाइक यू नो व्हाट, आई एम गोना फक माई डॉटर ओवर. शी वॉज लाइक मैं इसको इतना पीटूंगी इसको लाइफ में कभी कुछ याद भी नहीं रहेगा. द मिनट माई मॉम रिसीव माई कॉल, माई मॉम बैश्ड इन टू माई रूम. She opened my WhatsApp and she said क्या करिए, and then she just like went through my chats and then she also went through X's chat and she was like what are you doing, and then she read the whole thing. And you know what, the most embarrassing thing that can ever happen to a person is that जब तुम बच्चे हो और तुम्हें किसी के ऊपर क्रश है और तुम उस क्रश के सामने वल्नरेबल हो रहे हो, उसको अपनी फीलिंग्स बता रहे हो एंड हियर इज योर मॉम एंड डैड रीडिंग द चैट्स अलाउड. ओहो, मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और तुम्हें नहीं होगा फिर से. एंड देन दैट्स द मोस्ट एम्बैरेसिंग. एंड आई वाज लाइक cry, I was like please don't read my chats, please don't. But they were not stopping. You see how red I'm getting just talking about it. Imagine me back then. I still have trauma. I still have a beef with my parents for doing that to me. Anyway, that happened and my parents were like, you know what, fuck you bitch, अब तू रुक. फिर मेरी मम्मा ने निकाली अपनी चप्पल और तब तो हमारे पास बहुत बड़ा गार्डन हुआ करता था. मैं भाग गई फुल, मैं गार्डन में भाग रहा हूँ, like नहीं मम्मा नहीं, no. And then my mom was like, and then my mom literally took her चप्पल and threw it in my face. And then मेरी मम्मा ने मेरे को इतना चप्पल से मारा, इतने थप्पड़ मारे, इतना गाली दिया है. एंड दैट इज़ व्हेन आई वाज लाइक बॉयज़ के साथ फ्रेंडशिप नो. फिर उसके बाद माई मॉम कॉल्ड अप दिस गाय, ओके, फ्रॉम हर नंबर आई गेस, एंड शी इज लाइक मैं सृष्टि की मम्मा बोल रही हूँ. वो बेचारे ने मेरे से 1 साल से बात नहीं करी थी, वो मेरे से ऑलरेडी तंग था. मम्मा ने उसको कॉल करा, गाली दी एंड शी वाज लाइक मेरी बेटी से दूर रहे. आई वाज लाइक वो आपकी बेटी के पास आ भी नहीं रहा है, आपकी बेटी चाहती थी वो उसके पास है पर वो आना भी नहीं चाहता है, आप उसको दूर रहने के लिए क्यों बोल रहे हो? वो ऑलरेडी दूर था और अब वो और दूर हो गया. उसने मुझे रिपोर्ट भी कर दिया और पूरे स्कूल में मेरी बेइज्जती भी कर दी. That happened and now I don't think so I can bring it up with my mom because she will play the victim card again about how she was the victim. Now she wants me to talk to new boys, get married, whatever, but she's forgetting that she gave me lifelong trauma.
उन्होंने जो जिस लेवल से मेरी बेइज्जती कराई है, मैं कभी भूलूंगी नहीं, एंड आई विल नॉट लेट हर फॉरगेट दिस टू. Okay, yeah, anyway, that happened. उसके बाद I never spoke, and I had some mutual friends from that school who came in my DMs later. It's like, oh my god, तूने ये करा, छी, ew, yuck. Yeah, I was apparently the biggest clown in that school. And I think now that I'm hot and rich, I can talk about it and I can like laugh about it. But trust me, it was not a laughable moment back then. And I absolutely hate my parents for doing that for me. But you know what? In therapy, I have learned we should learn to forgive our parents and look at them as human beings. I still don't. But whatever. In a larger picture, I'm glad things never really worked out with that guy, and I found someone better in my life eventually. I would like to say this to the ninth grade Srishti that your friend's father sucks. I hate him so. And to your parents, I think just like forgive them and maybe, splurge with their money. But yeah, I have a lot more traumatic stories like this. Let me know if you guys would be up for some trauma bonding. Okay, bye.